سب سے پہلے تو آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پہلے دن جو تعارف کلامات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے جو بھی نصیحتیں دی گئی آپ لوگوں کو، اور میں دیکھا کہ آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک، 5:15 بجے تک، 5:30 بجے تک آپ لوگوں نے اس ٹریننگ کو لیا بھی، اور بہت سارے تاثرات ابھی میں سننے کو نہیں ملا۔ یہ فیڈ بیک لینے کا میرا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں مشورہ آ جائے جس کو ہم لوگ آگے اس میں چینجز لائیں۔ ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں اس کو ریکارڈنگ بھی ہم لوگ کراتے ہیں اور بجاتے دیکھتے بھی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں کھل کے باتیں ہوئی، اور فیڈ بیک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ صرف اچھا کہنے سے فیڈ بیک نہیں ہوتا ہے، جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے اسے بتانا بھی چاہیے۔ ہمارے کئی ساتھیوں نے آئے اور کہا کہ بہت اچھی ٹریننگ ہوئی اور ایسی ٹریننگ کبھی نہیں ہوئی تھی، اور یقیناً اور جگہ بھی جہاں بھی فیڈ بیک ہوتا ہے تو ان لوگوں نے ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ وقت کی جو پابندی یہاں جو دکھائی جاتی ہے، چاہے وہ الیکشن کی ٹریننگ ہو، چاہے سیاسی کی ٹریننگ ہو، وہاں کہیں بھی اس طرح کی وقت کی پابندی نہیں دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کا جو رول بالکل سخت ہے، اور وہ رول پہ ہم لوگ بالکل ایسا قتلی اور کرنی جو ہوتا ہے نا، دونوں میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں نے پہلے دن کہا ہے کہ ایک دن جو لوگ یہاں موجود نہیں رہے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ میں آج نہیں دوں گا، تو یہ یقیناً آج نہیں دوں گا، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت جو ہے سب کے سامنے ہے۔ جو لوگ اگر ایبسینٹ ہیں ایک دن بھی تو ان کو آج سرٹیفکیٹ دوں گا یہاں پہ، پھر واپس لے لوں گا۔ جب اگلی ٹریننگ ہوگی اس میں ان کو آ کے وہ ٹریننگ پورا کرنا پڑے گا تو سرٹیفکیٹ دوں گا۔ اب میں تھوڑا سا جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھی جمشید صاحب نے کافی اچھا تاثرات دیے، لیکن کچھ جگہوں پہ جو ہے مجھے بات کرنا کلیئرٹی چاہیے، اور وہ جو ہے ضروری بھی ہے مجھے بتانا بھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک کیا، اور مجھے خوشی ہوئی آپ نے یہ بات کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پہلے دن اپنا نام بھی ٹھیک سے نہیں بتا پا رہے تھے، یعنی کھل کے بات نہیں کر پا رہے تھے بہت لوگ، اور اس ٹریننگ میں جو ہے لوگوں نے دیکھا بھی گیا کہ بہت لوگ نہیں بول پا رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے لاسٹ تک بولنے لگے۔ تو ایک تو آپ نے اردو کا بات کیا کہ اردو جو ہے زبان چونکہ گھر کا ماحول نہیں ہے اور ہم خود پڑھ نہیں رہے ہیں، بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، تو ایک تو بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی اساتذہ کرام اس ماحول کو بنا سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرے جو ہے آپ نے ایک بات کہی کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس موڈول کو پہلے 1 ہفتہ پہلے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا۔ دیکھیے کسی بھی ٹریننگ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ٹریننگ میں کبھی بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ کتاب آپ کو کھولنا نہیں ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کہا جائے وہیں پڑھیے۔ یہ چونکہ لائف اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے، زندگی کے مختلف مہارتوں کا فروغ کرانا ہے۔ اگر ہم پہلے سے آپ کو بتا دیں کہ یہ کرنا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے اس میں تو آپ کو اپنا جو ہے ذہن دیکھنے دوڑانا ہے نا، اپنا جو دماغ لگانا ہے، سوچنا ہے، کیسے بولنا ہے ہم کو، ہماری جو تخلیقی سوچ کیسے ڈیولپ کرے گی، اس کا فروغ کیسے ہوگا۔ اس لیے ہم پہلے یہ میٹیریل نہیں دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ٹریننگ میں ہم لوگ گئے ہیں بالکل بلینک، ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ بھی ایجنڈا بھی نہیں پتا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ ایجنڈا پیش بھی کیا گیا تھا، ہمیں ایجنڈا بھی پہلے نہیں بتایا جاتا ہے، جب شروعات ہوتی ہے تبھی بتایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ امپاسبل ہے کہ ہم کسی بھی ٹریننگ میں پہلے جو ہے کتابوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے، یعنی جو ٹیچر جس لائق ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ٹاپک دیا جائے، یہ بھی جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کے لیے لائف اسکلس بہت ضروری ہے۔ آپ اگر 50 ایکٹیویٹی کا یہاں سے ٹریننگ اچھے سے نہیں لیں گے تو کیا مدرسے میں جا کے بچوں کو ٹریننگ اچھے سے دے پائیں گے؟ اس لیے کسی پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ آپ نے کہا کہ وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ڈی لوگ نہیں جانتے ہیں، بھئی یہ ہمارا استانیہ لیول کا جو ہے مدرسوں پہ ہو رہا ہے۔ وہ استانیہ لیول کا اگر ہم بات کرتے ہیں 6, 7, 8 کی بات کرتے ہیں، 6, 7, 8 کے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی سبجیکٹ ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات آپ ایلیمنٹری اسکول پہ جا کے دیکھیں، کہیں بھی سبجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن کا مطلب سبھی سبجیکٹ کو ٹیچر جانتا ہے، میتھ بھی جانتا ہے، سائنس بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے وہ اس لیے ہم کرا رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام جو وٹامنس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اچھی صحت کیسے بنایا جا سکتا ہے، صحت اور تندرستی کے لیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اگر ان باتوں کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو یہاں جان لیں، اسی لیے ٹریننگ کرایا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے اگر آپ قرآن اور حدیث میں بہت اچھے ہیں اور آپ کو ہم قرآن اور حدیث کے حساب سے جو ہے ٹاپک دیں
یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سبھی ٹاپک کے بارے میں سبھی کو بتانا ہے، سبھی بچوں کو جاننا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ ٹریننگ 50 ایکٹیویٹی کے کراتے ہیں، اور سب ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی آپ کے لیے ٹف ہو سکتا ہے، ان کے یہ سائنس کا ہونے کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہی الٹا ہو جائے کہ ان کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی ٹاپک مل جائے، یہ کیسے بتائیں؟ ان کو بھی نالج ہونی چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بھی پاسبل نہیں ہے، اس لیے ہم جنرل جو ہے ایک بات آپ نے اور کہا کہ جتنے بھی کتابیں ہیں، کتاب میں جو ہے بڑے سیکوینس میں دیا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی وہ ہم لوگوں نے جو ہے جو ٹریننگ میں اس طرح سے اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارے یہاں 6, 7, 8 تینوں کلاس کے بچے ہیں، کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو 8 کلاس کو بہت سمجھ میں آ جائے گا، جیسے عنفوان ثواب میں لڑکیوں کے مسائل، احترام۔ 8 کلاس کے بچے کا یہ جو ہے 13 سال 14 سال ہو جاتا ہے، 15 سال بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہی 6 کلاس کا بچہ جو ہے اس کا یہ جو ہے 10 سال 11 سال رکھتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس لیے اس کو سیکوینس میں تھوڑا آرڈر چینج کیا ہے ٹریننگ میں، لیکن آپ اپنے مدرسوں میں کرائیے، سیکوینس کے ساتھ کرائیے، اور یہ کتاب میں ہر چیز دیا ہوا ہے۔ ایک اور بات، یہ سیکوینس جو ہے نا مجھے ہے کہ ایک چیز اور خیال رکھنا ہے کہ احترام اور حیض جب بھی آپ کرائیں تو لڑکیوں کو الگ کر کے کرائیں، حیض کی ایکٹیویٹی جب بھی کرائیں آپ، جن مدرسوں میں لڑکیاں ہیں کوئی لیڈیز ٹیچر نہیں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جو ہے اساتذہ کام خود اپنے گھر سے اپنے وائف کو لے کے آ جائیں، یا کوئی ایسی لڑکی یا ایسی جو ہے محترمہ کوئی ہو جو حیض پہ اچھے سے بات کر سکے، تو ان کو تو لڑکیوں کو الگ کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ یہ ہم لوگ سب بڑے ہیں، یہاں پہ اب یہ ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، حیض کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں، اس دور سے سب گزر چکے ہیں، لیکن جب وہاں اسکول میں کرائیں تو احترام جب کرائیں تو لڑکوں کو الگ کر لیجیے، لڑکیوں کو ہم بیٹھائیے، تو یہ بہتر طریقہ ہے، یہ ضرور جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی آپ کے تاثرات میں کہ اس پورے پروگرام کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، تو دیکھیے آدمی جو ہے نا شک کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہم شک کرتے ہیں، جب شک آپ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ شک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اس عقل کا استعمال کیجیے۔ آپ اس پوری کتاب کو پڑھیے، اس میں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور کہیں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا سرگرمی ایسا کوئی ہم لوگوں نے نہیں کرایا ہے جس سے اسلام کو خطرہ ہو رہا ہو، پہلی بات، یا میں ایسی کوئی سی سرگرمی نہیں کرائی جس سے بچوں کا فروغ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ سائنس سے لیجیے ذرا، آپ سامنے والا جب ان سارے سرگرمیوں کو اس میں شامل کیا گیا جس سے ہمارے جو طالب علم ہیں، جو طلباء ہیں، ان کے اندر فروغ ہو سکے۔ اگر ان کو جو ہے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر ان کے اندر خود اعتمادی کا فروغ نہیں ہوگا، ہے نا، اپنے مسئلے کا حل نہیں کر پائیں گے، ایک مسئلہ ملے گا اسی میں الجھ کے رہ جائے گا، پتہ چلا زندگی برباد ہو گئی۔ یہی ہو رہا ہے، بچے اس لائق نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے کا حل کر سکیں، تو ہم اس لائق کو بنائیں کہ ہمارے بچے مسئلے کا حل کر سکیں۔ ہمارا مقصد یہ، آپ یہ سمجھیں گے یہاں پہ بات آ رہی تھی کرسچن یہودی اور یہ وہ، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی کرسچن کوئی یہودی کی اس میں کہیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ پورے ماڈل کو پڑھیے، اس کو تیار کرنے کے لیے میں نے بتایا کل بہت سارے سینٹرل یونیورسٹیز کے اسلامک اسٹڈیز کے ماہرین کو اس میں شامل کیا گیا، ندوۃ العلوم، دارالعلوم دیوبند کے جو ہے اسکالرز اس میں شامل ہو گئے، اور میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آپ سیوک سوسائٹی کے لوگ جو ہے، سوشل سوسائٹی جو ہے جس میں بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا نام میں نے لیا، اور بھی مدرسہ بورڈ کے ایک کئی چیئرمین جو اس میٹنگ میں رہے، اور یہ ایسے نہیں تیار ہوا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیکٹ شیٹ رکھا گیا ہے۔ آپ نے ایگزامپل دیا کہ آخری جو آؤ اپنے آپ کو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں، اس میں فیکٹ شیٹ آپ نے کہا کہ نہیں دیا ہے، یقیناً فیکٹ شیٹ دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ چیزیں نہیں کہی گئی ہے، فیکٹ شیٹ لیکن ہے۔ ہاں لیکن اب سوال یہ ہے ایک اور چیز، اس کو تیار کس نے کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ہر موضوع الگ الگ تیار کیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک پروفیسر اتنا بڑا اسکالر ہو جائے گا، اسلامک اسکالر، کہ ہر چیز کے لیے وہ حدیث جو ہے لا لے گا؟ ارے بھائی، اس کو کرنے کے بعد بھی اس کی ترمیم کی گئی ہے، بہت سارے غلط حدیث اس میں کوٹ کیا ہوا تھا، تو غلط حدیث کوٹ انہوں نے کر دیا، بعد میں آپ ہی جیسے علماء حضرات نے اس کو پکڑا کہ ارے بھائی یہ تو حدیث بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ پروگرام آج نہیں چلا نا، 2019 میں چلا ہے، تو بہت سارے اس میں ترمیم کیا گیا۔ آپ کو کچھ اس میں لگ رہا ہے،
यकीनन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप जरूर लिखिए और लिख के हम लोगों को दीजिए कि आप ये हदीस होनी चाहिए, अगर यह इस हदीस को जोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, और उसका रेफरेंस भी आपको देना है। विदाउट रेफरेंस जो है, विदाउट हवाला, अगर हवाला नहीं दे रहे तो वो बात नहीं मानी जाएगी। और हमारे यहाँ यही हुआ था, में बहुत सारे रेफरेंसेस जो है नहीं दिया गया, हदीस दे दिया गया लेकिन हदीस कहाँ से माखूज है ये नहीं दिया गया। इसलिए जैसे ही उलमा हज़रात ने इसमें ऑब्जेक्शन किया, कहा कि ये हदीस जो है यहाँ का नहीं है, यहाँ का है, और ये गलत हवाला दिया गया। एविडेंसेस मिल गया, उसको हम लोगों ने इसमें चेंज किया। अगर ऐसा कोई भी, इसको जाके अच्छे से पढ़िए आप लोग, अगर कोई भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई गलती है इसमें, आप बिल्कुल उसको जो है सही करिए और करके हम लोगों को भेजिए। और आपके फैसिलिटेटर ये नईरुल इस्लाम साहब हैं, उनको दीजिए। ये अररिया में फैसिलिटेटर हमारे हैं, ये पूरा अररिया रीजन में देख रहे हैं, आप इनको गालिब साहब को भेजिए और यकीनन हम लोगों तक पहुँच जाएगा और मीटिंग में हम लोगों को जरूर रखा जाएगा। तो ये आप यानी कि सब का कोई इंटेंट नहीं है। हम लोग इस प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो बिल्कुल गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमसे मुराद हम तमाम असातिज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, हम एक रिक्शा पुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिक्शा चला के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि उसे इल्म ही नहीं है कि पढ़ाई क्या है, इल्म क्या है, उसे नहीं पता है। लेकिन हम तमाम असातिज़ा इस बात को जानते हैं कि यही इल्म जो है आज आपको दुनिया में जो क्या करता है, रोशन बनाता है, आपको इस लायक बना देता है कि आप दूर से चमकने लगते हैं। तो ये चमकने वाला बनाने वाला आपको बन जाए, मेरा यही मकसद है कि हमारे तमाम बच्चे, कौम के बच्चे जो मदरसे में नहीं आ रहे हैं, किस प्रोग्राम के जरिए मदरसे में आने लगे। एक सवाल आपका था कि हाउ टू इंक्रीज द स्टूडेंट ऑफ मदरसा, है ना, मदरसा के स्टूडेंट को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, कैसे कराएंगे, यही काम करना है। आपका ये मदरसा है, क्या अतराफ में आप घूम के नहीं बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से जाकर मिल नहीं सकते हैं? हमारे साथ कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे आएंगे? भाई सोल्यूशन तो हम लोग खुद निकालेंगे, बाकी ऊपर से जो सोल्यूशन होगा वो होगा, लेकिन सोल्यूशन कौन निकालेगा? हम मदरसा में हम आ रहे हैं और कुर्सी जो है तोड़ के और चले जा रहे हैं, एक दिन क्लास नहीं दे रहे हैं, आप ये सोचते हैं वो पैसा जायज हो रहा है? यकीनन वो पैसा हराम होगा अगर आप जो है सही तरीके से काम को नहीं अंजाम देंगे। बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वो जिम्मेदारी भी आपकी की है। जिम्मेदारी इसलिए है कि गरीब पेरेंट्स हैं, माँ बाप गरीब हैं, उनको जाके आप समझाइए, उनको जो है इस तालीम की अहमियत को बताइए, उनको बताइए। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जो है वो बच्चों को जो है इस तरह से बताइए कि वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जैसे 75% अटेंडेंस आ रहा है, यकीनन बोर्ड को चाहिए था और ये हर जगह रूल होता है। अब आपका मदरसा बोर्ड कितना एक्टिव था वो हम लोगों के पास ऑलरेडी उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए है कि 2019 में जब मैं इस मदरसा से जुड़ा हूँ इस प्रोजेक्ट से, तो हम लोगों ने कटिहार और पूर्णिया का जो है लिस्ट जो है 10 बार में मदरसा से लिस्ट नहीं आ पाया था। इसी मदरसे बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और मदरसा बोर्ड में क्या हो रहा होता है सबको पता है, ठीक है। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी और वो तब्दीली लाने के लिए ही ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं जो कहा था कि ऐप बन रहा है, अब बना हुआ है, दूसरे इदारों में उसको काम किया जा रहा है, क्या वो कम नहीं है? क्या आप अपने मदरसे के जो दीजिएगा रिपोर्ट, तो क्या वहाँ लोग देखेंगे नहीं? क्या भाई ये डैशबोर्ड बना हुआ है, डैशबोर्ड में एक क्लिक करेंगे और जो है आपका जो है जो कि यहाँ के मदरसे का असलाम मुस्लिमीन का निकल के आ जाएगा कि उसमें जो है कितने मदरसे में 6 में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, 7 में कितने, 8 में कितने, और स्टूडेंट हैं कितने, हकीकत में जिस दिन एक्टिविटी हो रहा है कितने बच्चे रह रहे हैं, क्लास हो रहा है कितने बच्चे रह रहे हैं, एक क्लिक में निकल के आएगा। तो ये सारी तैयारी हो रही है और आपको यकीन जानिए हम इससे बात कर रहे हैं कि अगर आप हम असातिज़ा अगर बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह जो है ये बच्चे हमारे बिल्कुल बेदार हो जाएंगे। बच्चे हमेशा की तरह पहले जैसे बच्चे जो है इसी मदरसों से निकल के अबुल कलाम आज़ाद कहाँ से निकले, बड़े बड़े मोहानी और इतने बड़े बड़े जो लोग जो निकले कहाँ से निकले? क्या उस वक्त जो है स्कूल था? अरे इन्हीं मदरसों के वो लोग तालिब इल्म रहे हैं, इन मदरसों से जो बड़े बड़े जो स्कॉलर निकले हैं। यकीनन जो है आज भी अगर बच्चे को तो आप सही तरीके से उनको रहनुमाई करें, उनको ख्वाब दिखाने लगें, उनको ये बताने लगे कि इस तालीम के जरिए दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे कदमों के नीचे होगा, एक बार तुम्हारी मत करोगे तो सिर्फ जो है तुम्हारा इलाका नहीं, तुम्हारा जिला और तुम्हारा स्टेट जो है तुम्हारे ऊपर फख्र करेगा। आज आमिर उस्मानी साहब किस पोस्ट पर बैठे हुए हैं?
आप लोग सब जानते हैं आमिर सुबहानी साहब किस पोस्ट पे, किस प्रोजेक्ट में, उनका भी बहुत बड़ा रोल है और कितना किस तरह के इंसान है आप सबको पता होगा उनके बारे में। आमिर सुबहानी साहब क्या थे, आईएएस टॉप हुए ना, आईएएस टॉप करने के बाद आज किस पोजीशन पे बैठे हैं, किस मुकाम पे बैठे हैं, तो क्या हमारा दूसरा बच्चा आईएएस टॉप नहीं कर सकता है? बिल्कुल। क्या ऐसा है कि 87 के बाद में टॉप करना बंद हो गया, मुसलमान का बच्चा टॉप ही नहीं करेगा? अरे उससे पहले भी टॉप किया, 77 में जावेद उस्मानी साहब टॉप किए थे ऑल इंडिया टॉपर, किए नहीं किए? शाह फैसल कश्मीर ऑल इंडिया टॉपर नहीं है, उसका क्वेश्चन है ऑल इंडिया टॉपर नहीं है, ये लोग दोनों ऑल इंडिया टॉपर हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है इस चीज को देखिए कि उन बच्चों को आपको सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक उम्मीद जगाना है, और उम्मीद जगाने के लिए पहले आपको बेदार होना पड़ेगा। गफलत में अगर जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हम लोगों का ये किया जाना सब बेकार होगा। हम सब जहाँ भी जाते हैं हमारे पास एक सोच होगी, एक फिक्र होनी चाहिए कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें। पढ़ लिखने से मतलब ये है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर सब बनेगा। क्यों जो है मदरसा बोर्ड ने जो है 11th क्लास में मौलवी में साइंस और कॉमर्स और जो है आर्ट्स अलग अलग कर दिया? क्यों कर दिया? वो वक्त के नज़ाकत को समझते हुए कि सिर्फ आप जो है आर्ट्स पढ़वा दीजिए, कुरान और तारीख पढ़ा दीजिए, उससे काम नहीं चलने वाला है। साइंस की नॉलेज जरूरी है, साइंस की जो इल्म लेना बेहद जरूरी है, तभी हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि साइंस नहीं पढ़ेगा हमारा बच्चा तो यकीनन हम पीछे रहेंगे। आपको पता होना चाहिए यही जिस वक्त इस्लाम का उरूज था पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में साइंसदान कौन लोग थे? सारे मुसलमान थे। उसके नाम को लोगों ने अभी चेंज कर रहा है, नाम ऐसे बता रहे हैं कि वो क्रिश्चियन हो जाए, ठीक है, लेकिन यकीनन जो है आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ जब आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि पुराने जितने भी साइंसदान हैं सब मुसलमान हैं, ऐसे इस्लाम को मानने वाले साइंसदान हैं। फिर आगे वो कहाँ चला गया? फिर हमारे बच्चे जो है साइंस से दूर क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि हम जो है उलमा हज़रात की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे सारा तमाम टीचर की बात कर रहा हूँ, तमाम मसाला की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग जो है नज़रअंदाज करने लगे, वो खुद जो है साइंसी जो है नज़रिए को दूर कर दिए, उनको लगा कि साइंस तो बेकार की चीज़ है। अरे भाई अगर साइंस नहीं डेवलप होता तो आज जो है ये सब कहाँ से लेके बैठे हुए हैं? अब वही हो रहा है कि अब जो है यही हम लोगों का चीज़ जो है दूसरों ने अख्तियार कर लिया, उनके यहाँ साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मोबाइल जो है मुसलमान नहीं बनाया, टेलीफोन मुसलमान नहीं बनाया, ठीक है, बहुत सारा जो है आप देख लीजिए जो है वैक्सीनेशन जो है मुसलमान नहीं बना, क्योंकि साइंसी नजरिया ही छूट गया उनसे और वो घर उन्होंने ले लिया। अब वो लोग अभिजात कर रहे हैं और हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम वो दौर में आना चाहते हैं कि हमारे जो है मुस्लिम जो हम लोग जो हमारे गाँव के जानने वाले जो हैं वो इस तरह से पढ़ाई करें कि वो साइंसी लोग की नज़र को समझें, साइंसी उनके अंदर जो है सोच आए ताकि वो अच्छा करने की कोशिश करें। हम जो कुछ आप कहेंगे हम आँख बंद करके नहीं मान लेंगे। क़ुव्वत इदराक अल्लाह ताला ने दिया है, सोचने समझने की सलाहियत आपको दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करिए और अपने बच्चों पे खास करके पूरा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ डंडा चलाने से बच्चा नहीं रहेगा मदरसा में, आप अगर उसको पीट देंगे बच्चा चला जाएगा, और एक बच्चा चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो कौम का जो है बहुत बड़ा खसारा। तो हमारे बच्चे जो आज मैंने कहा था ना कि 3% आपको जो है मैं बताऊँ 3% भी ग्रेजुएट 3% भी ग्रेजुएट बच्चे नहीं हैं, यानी आला तालीम जो हमारे मुस्लिम 3% भी नहीं है, 2.7। अब बताइए जिस कौम में 3% भी ग्रेजुएट बच्चे नहीं हैं, क्या उस कौम की जो तकदीर जो सुधर जाएगी? क्या तकदीर कैसे बनती है? तकदीर को बनाना पड़ेगा और तकदीर बनेगी तो मेहनत की। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेहनत करो तो मैं तुम्हें दूंगा। मेहनत आप करेंगे तो मिलेगा फल, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कुछ नहीं। आप घर पे बैठ जाइए, बहुत बड़े आलिम और कारी और फाजिल सब कुछ है, आप घर पे जो है हाथ पे हाथ बैठ जाइए और कहिए कि अल्लाह ताला हमको खाना भी देगा, सारा काम हम अल्लाह ताला कर देगा, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? वो दौर था, वो दौर था, अल्लाह ताला ने ऐसा भी किया, अल्लाह ताला ने ऐसा भी किया, वो कादिर है, कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में अल्लाह ताला किसी के साथ कर भी सकता है, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 99.9% तो ये कह सकता हूँ कि आप अगर कोई काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। खाना इसलिए नहीं मिलेगा कि
आपको उसके लिए भी हाथ जाकर धुलना पड़ता है, खाना लग जाता है तो भी हाथ जाकर धुल के आके खाते हैं ना। तो हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है, इस तालीम नाबालिगा प्रोग्राम के जरिए एक जो मैसेज है जिसको आपको समझना चाहिए वो सिर्फ ये है कि हम बच्चों को किसी तरह से कोशिश करके स्कूल मदरसा में लाने वाला बना दें, ताकि बच्चे जो है मदरसा में आ जाएं, मदरसा में रुकें और उनको ये समझ में आ जाए कि हम तालीम के जरिए दुनिया की सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आला तालीम हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके हासिल कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और पैसा कहीं जो है आपको अड़चन नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे पता है गरीब से गरीब घर के बच्चे हमारे साथ, हम लोग आर्ट्स में पढ़े वहाँ अलीगढ़ में, लेकिन वो बच्चे गरीब से गरीब घर के बच्चे, गरीब इतना गरीब कि उसका नाश्ता हम लोग कराते थे। कई बार जो है वो चना जो है बेचारा ये करता था, रात में भिगोता था और उस जो है चना को सुबह में खाता था नाश्ते। और वो बच्चा आपको पता है IIT से PhD किया, अलीगढ़ मुस्लिम से BTech किया, और वो बच्चा जो है आपको US में गया और आज के डेट में प्रोफेसर। तो ऐसे भी लोग हैं जो पैसा अगर उनके अंदर जज्बा है तो आप ही में से 5 लोग ऐसे हैं जो 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और हमारे CDA दरभंगा में बहुत सारे टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग प्लीज आप लोग जग जाइए। ये मैं पहले ने कहा था कि जगाने आया है आदमी, तो आप लोग जग जाइए, बेदार हो जाइए और बच्चों को बेदार करिए। वो बच्चे आए, बच्चों को पढ़ाइए, उनकी रहनुमाई करिए। चाहे बच्चा नहीं हो सकता है कि आप 2-3 बार जाएंगे, 2-3 बार उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, पेरेंट्स को भी लगेगा कि यार मोदी साहब बार बार आ रहे हैं, हम बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हैं, बच्चा मेरा पढ़ लेगा। उनको ये भी बताइए। अभी इस प्रोग्राम में क्या मुझे 9 फंक्शन है इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे काम हैं, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चों के लिए रहनुमाई का भी काम इसमें कराया जाएगा, हेल्थ काउंसलिंग का भी कराया जाएगा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना, उसके तहत जो है बहुत सारे कमीशन करवाए जाएंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स करवाए जाएंगे। बहुत काम बहुत है इसमें, और बच्चे को अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, दिलचस्पी उनके अंदर पैदा कराना है। जब बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाएगा वो बच्चा बिल्कुल मदरसा छोड़ के नहीं जाएगा। तो हमारा मकसद साफ है और इसी को करे हुए कोई सर की गुंजाइश नहीं है। इस किताब को पढ़िएगा, अंशुर अहमद कासमी साहब का भी इसमें मैसेज है। इसके अलावा जो तैयार किएगा उसमें जो है नगवा के लोग भी हैं, देवबंद के भी लोग हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU, जामिया, DU, मौलाना आजाद नसरुद्दीन यूनिवर्सिटी, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे आपको जो है मशहूर यूनिवर्सिटीज़ की जो है इस्लामिक स्टडी शोभा है, जो है इस्लामियात का जो शोभा है, उसके प्रोफेसर आप बहुत सारे लोग नाम है, अगर बताएंगे तो आप बहुत लोग को जानते भी होंगे। बहुत सारे काश्मी लोग हैं, बहुत सारे नदवी लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामिक स्टडीज़ में, और वैसे लोगों को इसमें शामिल करके ये तैयार किया गया है। तैयार एक दिन में नहीं हुआ। हाँ, एक सवाल किसी ने और कहा था कि वो फुकानिया के बच्चे भी होते हैं। यकीनन ये हमारा प्रोग्राम उस्तानिया और फुकानिया दोनों के लिए है, क्योंकि मॉड्यूल अभी सिर्फ उस्तानिया लेवल पे तैयार है, इसलिए हम लोग ये उस्तानिया के लिए करा रहे हैं। जैसे ही मॉड्यूल फुकानिया का तैयार होकर आ जाएगा और बहुत करीब आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग जो है फुकानिया लेवल का भी कराएंगे। जो टीचर 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके यहाँ जहाँ 9 और 10 के मदरसे हैं, फुकानिया लेवल के मदरसे हैं, उन उस्ताद कराम को भी बुला के हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे। जहाँ उस्तानिया लेवल का मदरसा है उनको ट्रेनिंग देने से हमको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके यहाँ 9 के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा प्रोसेस बना हुआ है, और ये प्रोसेस ऐसा है कि मानो रहे न रहे, लेकिन ये उम्मीद है कि प्रोजेक्ट सर्वाइव करेगा। और जिस तरीके से कहा गया है, इंशाअल्लाह आप लोग देखिएगा कि फुकानिया लेवल में भी ट्रेनिंग करवाया जाएगा, प्रिंसिपल का भी ट्रेनिंग कराया जाएगा। और आज भी हज भवन में आप लोगों को पता होना चाहिए, कटिहार अकबरिया के प्रिंसिपल का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है हज भवन में। कौन लोग वहाँ दे रहे हैं? यही मदरसा बोर्ड के जो है चेयरमैन वहाँ है, मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उसके बाद जो है आपका जो है अकलियती फलाह जो है डिपार्टमेंट जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो है फैजी साहब, सकीना मैडम, और ये आमिर उस्मानी साहब शायद आज नहीं होंगे क्योंकि ऑफिस टाइम में उनको बिजी हैं, चीफ सेक्रेटरी है, वरना हर ओरिएंटेशन में रहते हैं। आज के शायद ओरिएंटेशन में नहीं होंगे। इसके अलावा एक्टिविटी, मानव सिटी सब लोग तो हज भवन में चल भी रहा है।
तो मुख्तसरन ये है कि आप लोग इसको सब के दायरे में नहीं, कोई भी काम इसमें करिए आपको ये दिखेगा, ये पता चलेगा कि हम जो अगर ये कराएंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बोलने की सलाहियत। आप अंजुमन कराते हैं, उसका मकसद यही होता है ना कि बच्चा खड़ा होकर बोल सके, तो इन सब को सामने लाना है। तो मैं टाइम बहुत ले लिया, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन चूँकि थोड़ा सा जो है वजाहत के साथ बात करनी थी, तो इसलिए जो है किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है आपके उसमें। हाँ, एक आप लोगों से और मेरा रिक्वेस्ट है, जो जाती रिक्वेस्ट है, और चूँकि इस प्रोग्राम से जुड़ने की वजह से मैं आप लोगों से मौजूदाना गुजारिश करता हूँ कि जो कुछ आप सीखे हैं, सीखने का मतलब होता है, हम अगर टीचर हैं तो टीचर का काम ही होता है कि जो सीखे हैं उसको दूसरे तक मुंतकिल करना। तो जो कुछ भी आप सीखे हैं, कहीं अगर कमी है, किसी एक्टिविटी में आपको नहीं समझ में आया है, हमारे ट्रेनर हैं, उन लोगों से आप करिए, मेरा नंबर है, वो मुझसे बात कर सकते हैं, गालिब साहब का है, आरएफसी कोऑर्डिनेटर हमारे साहबुद्दीन साहब हैं, किसी से भी आप बात करिए और आप तैयारी अच्छे से करिए। आप कोशिश करिए कि वो सब चीज़ें हम बच्चों को सिखलाएंगे। बच्चा जब आपके सामने खड़ा होकर अच्छे से बोलने लगेगा, तो वो डीएम साहब के पास डरेगा नहीं बोलने, क्योंकि बोलने की जो सलाहियत जो का फरोग होगा वो आप ही के पास होगा। लेकिन आप अगर उसको 1-2-4 डंडे मार के चुप करा दिए, वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा, क्रिएटिविटी वहीं पे मर जाएगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा, तकनीकी सोच खत्म हो जाएगी। इसलिए बराए करम आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है जो कुछ भी सीखे हैं 7 दिन में, उसको कोशिश करिए कि जाके मदरसा के बच्चों को अंदर भी फरोग करने की कोशिश करिए, उनके अंदर भी उन चीज़ों को लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 7 रोज़ा ट्रेनिंग में जो है हमारे ट्रेनर हजरात के बारे में भी हमारे उन्होंने कहा, आपका जो है मसला बिल्कुल सही है कि ट्रेनर बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट का मैटर है, इस वजह से ट्रेनर तो नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं आप लोगों के सामने इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जब 4 लोग हैं तो कम से कम एक आदमी अपनी जिम्मेदारी और अटेंडेंस का काम करे, बाकी 3 लोग जो है पूरा ट्रेनिंग में फोकस करें। तो ये आगे से जितनी भी ट्रेनिंग होगी, मैं अभी लोग जो है ये मशवरा देता हूँ कि इस तरह के जो है फीडबैक नहीं आने चाहिए कि ट्रेनर हज़ार अपने काम में मशगूल हो जाते थे और हम लोगों को देखते नहीं थे। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो है मैं सबके सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने ट्रेनर के तरफ से भी कि गुस्ताखी हमारे तरफ से हुई है, और गलतियों के लिए जो है बिल्कुल माफ़ी मांगने का कोई बुराई की बात नहीं है, गलतियाँ हैं। जब मैं उस दिन भी कहा था कि भाई एक आदमी अपना काम करे यहाँ बैठ के, बाकी 3 लोग जो है कम से कम एक्टिविटी को देखें कि क्या गलती हो रही है, उसको जो है सलाह देकर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर वो गलती रह गई तो वही तो मदरसा में जाके बच्चों को कराएंगे। तो इसलिए मैं इनके तरफ से माजरत खा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।